Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi ashabi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And today's topic is the black seed, or we commonly call as kalonji, and in English it is called the black seed or the black cumin seed. And this topic was not decided till yesterday. Till yesterday afternoon, it was not decided. And I had a book, a very nice book, published by Darus Salam, uh, Islamic Healing. And I was just going through the days of pandemic, and people are searching for cures and kadas and all these things. So even I, was just going through the book, and I saw the topic about kalonji, the black seed, and it was such an amazing, presentation that I wanted to share with my audience. Alhamdulillah. So today we are going to discuss about the black seed or kalonji. First, we come to the Quranic concept of healing. The Quranic concept of healing is that Allah is the healer, and the doctors and the medicines are the means of healing. This concept of healing signifies that a physician diagnoses an ailment and prescribes medicine. A pharmacist prepares the medicines and dispenses them to the patient. Ultimately, it is Allah who heals the ailment through the medicine. Thus, pharmacy and medicine, disease and treatment, patient and physician are all interrelated in the process of healing, which is done by Allah, in whom full trust should be placed. In support of this, through the tongue of Prophet Ibrahim alayhi salam, the Quran says in Surah Ash-Shura, chapter number 26, verse number 80, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. And when I am ill, it is He who heals me. It is He who cures me. It is Allah who cures me. So this should be the aqidah of any Muslim, that ultimately Allah is the healer, right? And today I know that days of lockdown and pandemic, we are under stress. Everybody is under stress. Everybody is searching for remedies, for taking precautions. And what more, what can be the best precaution and remedy if we don't check it in the Quran and the Sunnah, in the prophetic hadith, right? There is a hadith by Abu Huraira. The narrator is Abu Huraira radhiyallahu anhu, in which the Prophet said, Allah did not send down a disease without having sent down its cure. This prophetic statement indicates that Allah has already created remedies for every disease, but all remedies are not yet discovered. Allah ने दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं भेजी जिसका पहले से ही इलाज न भेजा. Allah is most gracious, most merciful. He has sent the remedies first. So we have to search for the remedies. We have to search for the cure, right? The prophetic medicine. My talk is mainly based on the book Islamic Medicine, The Key to a Better Life, by Yusuf Al-Hajj Ahmad, published by Darus Salam, publishers Riyadh, KSA, and even on the iconic book by Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi, Al-Tib an-Nabawi, The Prophetic Medicine. Prophetic medicine, or medicine of the Prophet, comprises the divinely inspired words of the therapy of Prophet Muhammad, peace be upon him. The Prophet spoke every single sentence to guide people with the inspiration of Allah. It is amazing that not a single statement of the Prophet, peace be upon him, is found to be contradictory
to the basic principles of modern medical science. The Quran says in Surah An-Najm, chapter number 53, verse number 3 and 4, Allah says in the Quran, He does not speak anything of His own desire. That is, Prophet Muhammad does not speak anything of his own desire. It is only a revelation revealed. So the hadith of the Prophet, including the hadiths on healing, are also true. And modern science has proved it through research after 14th century. यानी अल्लाह के रसूल ने जो भी बात कही दीन के बारे में, हदीस तो ये अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से था, और अल्लाह के रसूल ने जो तिब के बारे में, मेडिसिन के बारे में जो गाइडेंस दिया है, वो भी अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से। ठीक है, Allah's Prophet made specific statements on around 37 diseases and nearly 61 medicinal plants, herbs and shrubs while making prescriptions for the sick people, out of which Nigella sativa or kalonji or black seed or black cumin is the most important for healing. Therefore, although the Prophet's arrival was not as a doctor, as a physician, or as a pharmacist, he was inspired by Allah to make nearly 1,000 statements on healing for the benefit of humankind. Because man needs to remain well, free from sickness, to fulfill his brief mission on earth. Now, this information I am taking from the website medcraveonline.com. Okay, medcraveonline.com about the prophetic medicine, and the details of whatever I say you can find in the on the website. Okay, the references, etc. In that website, I read the Prophet made specific statements on nearly 61 medicinal plants, herbs and shrubs, out of which the statement on Nigella sativa, the medicinal name of kalonji, okay, is the most important. The statement which Allah's Prophet made about kalonji is the most important. About Nigella sativa, black seed, it is mentioned in Sahih al-Bukhari, hadith number 5374, and Sahih Muslim, hadith number 1202. Allah's Prophet said, in the black seed is a healing for every disease except death. This amazing statement generated tremendous interest among the world scientific community. Their question was how an unlettered man in the desert can say, scientific things, right? The Prophet did not have any laboratory, right? Any lab or anything to check. There was no chemistry at that time, no science, no pharmacy. So how could this man make a statement like this? That that black seed is a cure for every disease except death. The statement finally led the global scientific community to carry out extensive phytochemical and biological investigations on Nigella sativa seed and its oil. The researchers, after having carried out hundreds of scientific researches around the globe, finally came to the conclusion that this tiny plant seed can effectively cure 129 different types of ailments, including 17 types of cancer, diabetes, AIDS, and high blood pressure. This large number of diseases curable by Nigella sativa demonstrates the authenticity of the Prophet's statement that it is the black seed is the cure for all disease. Right? All the references which I gave can be had from the website. Okay, Medcrave Online. Although there were more than 400 herbs in use before Prophet Muhammad, peace be upon him, अल्लाह के रसूल के जमाने में भी 400 किस्म के पौधे वगैरह थे जो मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते थे, right? And they were recorded in herbals of Galen and Hippocrates.
But black seed was not one of the most popular remedies. Since black seed is now considered a remedy of the Prophet, its usage and popularity have increased significantly. Due to the great importance attached to the Prophet's statement, more than 2 conducted scientific research projects on black seeds since 1959. In fact, researchers have acknowledged that there is no plant extract that is known to have such a wide range of healing capabilities as the black cumin. It was amazing that the researchers, after conducting hundreds of researches around the globe, finally came to the conclusion that not a single statement of the Prophet is found to be contradictory to the basic principles of medical science. अल्लाह के रसूल ने जो दवाइयां बताई है, जो तिब मेडिसिन बताई है, एक भी स्टेटमेंट मॉडर्न साइंस के खिलाफ नहीं है. In other words, the Prophet's statement was found to be 100% true. Today we know through scientific researches that black seed can cure no less than 129 different kinds of diseases, including diabetes, hypertension, AIDS, cancer, etc. This large number of diseases curable by the black seed demonstrates the authenticity of the Prophet's statement. Currently, modern scientists have begun to acknowledge that black cumin, black seed, is one of the most potent natural medicines known to science. It is the only plant seed on which highest number of scientific researches has been carried out around the world. Recently, Australian New Crop Info 2016 listed interesting plants of the world and reported the popularity of Nigella sativa over time. Today, due to findings of modern research, many modern scientists classify it as all-in-one therapy. Modern scientists क्या बोलते हैं? ये black seed जो है, Nigella sativa और कलौंजी, ये all-in-one therapy है. ये सारी बीमारियों का इलाज है. कौन बोलता है? मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं. A universal remedy, a magical herb. US researchers have also confirmed the benefits of black seed, and they have written the first report on the anti-tumor effects of black seed. The title of the report is Study of the Effects of Nigella sativa Black Seeds on Humans. Many books have been written on black seeds, but unfortunately, we Muslims have not realized the significance of kalonji. How many of us use kalonji at home, right? Even I started, maybe 1.5 years before, and till now most of Muslims, I think around 80% Muslims don't know about kalonji, about the prophetic medicine. This is a sad fact. Every Muslim household should have kalonji at home. And books on prophetic medicine. And first we should go to the prophetic medicine. जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ बीमारियों का इलाज बताया है, तो दूसरी जगह देखने में क्या मतलब है? हाँ, we should go to the doctor, we should obtain modern medical assistance, no doubt about that. But first, basically, we should go towards the prophetic medicine. Okay, the prophetic hadith further indicate that since high blood pressure and hypertension are two diseases, they are not incurable. No, they can be cured. Now, this website which I have referred was paying more attention on the diseases high blood pressure, and they have claimed that Nigella sativa can effectively cure high blood pressure within 8 weeks without causing any harmful side effects. They say that the prophetic medicine is the cheapest, safest, and the best remedy in the prevention and treatment of high blood pressure. So people having high blood pressure, very good news for you. So we come to the book now, published by Darus Salam. Okay, we come to the hadith
of the Prophet, peace be upon him, narrated by Al-Bukhari, a detailed hadith about Kalonji. It was narrated that Khalid ibn Saad said, "We went out and Ghalib ibn Abjar was sick. He fell sick. We came back to Medina while he was still sick. Ibn Abi Atiq visited him and said to us, 'You should use his black seed. Take 5 or 7 seeds and crush them and then drop them into his nose with a few drops of oil on this side and on this side. Because I heard Aisha radiallahu anha tell me that she heard from the Prophet, peace be upon him, that this black seed is a healing for all diseases except Al-Sam.' I said, 'What is Al-Sam?' The Prophet replied, 'Al-Sam is death.' Ibn Hajar, may Allah have mercy on him, said the meaning of the black seed being a healing for all diseases is not necessarily that it is to be used on its own for every disease. Rather, it may be used on its own or it may be used with other things. यानी कलौंजी को जो है अपने आप से भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ कलौंजी, और या फिर कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे अक्सर हम शहद के साथ यूज करते हैं. One of the most well-known names for black seed is Habbat al-Barakah. Very interesting, right? Or the seed of blessing. This name is said to be connected to a black bondswoman, a black slave, female slave, who served the Prophet, whose name was Barakah. May Allah be pleased with her. The definite article al indicates that it is regarded as a, blessing that is sought, right? And we have seen about Barakah, we have learned about Barakah, Ayman, in the Sira series. I think of 1 or 2 months before, we discussed Ayman or Barakah, right? She was a great female companion and was known as Ayman. She was the nurse of the Prophet, and she used to use this seed to treat the sick, acting upon the recommendation of the noble Prophet. यानी अल्लाह के रसूल ने जो कलौंजी का इस्तेमाल बताया था बरका को, तो बरका रजी अल्लाह अन्हा जो है वो लोगों का इलाज करती थी. कौन से बेसिस पे? जो उन्होंने अल्लाह के रसूल से सीखे थे. The plant from which the black seed comes, Nigella, belongs to the plant family Ranunculaceae. The pronunciation is very difficult. Okay, of which more than 20 species are found worldwide. The most famous species types of kalonji are cultivated black seed, Nigella sativa, that we commonly use here in India. Then wild black seed, the English call it small fennel. Then we have the Syrian or the Damascus black seed, right? So 3 main types of kalonji. It is an herb which is cultivated for food and grows by itself among other plants in a parasitic manner, especially in woodland areas. The plant grows to a height of 10 to 40 centimeters with a rigid, coarse stem covered with soft hairs. Its leaves are bluish green and feathery with small thread-like leaves. Its flowers are large and sky blue with a hint of green. So it is, in this book, very detailed description of the black seed and the black seed plant, the Nigella plant is given here. Even the chemical composition of the black seed is given here. I don't want to go into that. It will take much time. So we directly go to the medicinal benefits of black seed. Black seed, especially the cultivated form Nigella sativa, is regarded as one of the oldest plants to be used medicinally. Ibn Sina, Ali Ibn Sina, prescribed it for the treatment of headaches and migraines, paralysis of facial nerves, and cataracts. He prescribed that crushed black seed should be mixed with honey and drunk in hot water to treat and destroy kidney stones and bladder stones, gallbladder stones.
Kidney stone is a very common disease now. So Ibn Sina is telling us crushed black seed, kalonji ko koot ke, it should be mixed with honey and drunk with hot water. Garam pani se pee lo. It will destroy kidney stones and bladder stones. And it is also used as a diuretic. He also prescribed it to be used in the form of nose drops and soaking it in vinegar to treat headaches and migraine, the common cold and other sickness. Ibn al-Qayyim, rahimullah, he mentioned that it increases the flow of milk in nursing mothers, may be used as an aphrodisiac, and may be used to regulate the menstrual cycle. In Arabic folk medicine, it is eaten with raisins to strengthen the body, brighten the face, and reduce its pallor. They also knew a way of extracting oil from the seeds. The Arabs, they knew how to extract oil from the seeds, which they used to treat chronic cough and as a medicine for asthma. तो आज के ज़माने में कोविड-19 के ज़माने में जब खांसी और सर्दी और जो कफ ये बहुत ही कॉमन और मेन इंडिकेशन है, तो ये कलौंजी का बहुत फायदा होता है, राइट? तो जितना हम बात करें इसके बारे में कम है. मॉडर्न मेडिसिन फेल हो चुकी हैं कोविड-19 के सामने, और अल्लाह के रसूल, हमारा ईमान है कि अल्लाह के रसूल कोई गलत बात नहीं कहते, कोई नौज बिल्ला, कोई झूठ बात नहीं कहते, नौज बिल्ला. जो भी बात वो कहते हैं दीन के बारे में, लोगों को गाइडेंस करने के बारे में, वो सारा अल्लाह की तरफ से इंस्पिरेशन है. तो कैसे होगा इंशाल्लाह देखेंगे. ओके, द अरब्स आल्सो यूज्ड इट टू ट्रीट स्टमक एक एंड बॉवल पेन. और बहुत सारा डिटेल है, आई नॉट गो इनटू डिटेल. It is also used as a mouthwash to soothe toothache. It is used for stomachache as a laxative, right, and to relieve gas because of the essential oil that it contains. It is also used to get rid of worms, especially tapeworm. Okay. It also gives excellent results as a remedy for the common cold, flu, and throat infection. ये हमारे लिए आज काम की चीज है. सारा सब लोगों का फोकस उधर ही है, खांसी कैसे कम करे, कफ कैसे कम हो सकता है, और ये जो सांस लेने ब्रीदिंग प्रॉब्लम कैसे कम हो सकता है. ये सब देखो यहाँ पे मेंशन हो गया. एस्थमा का मेंशन हो, जहाँ पे सांस लेने में तकलीफ होती है वो मेंशन है. फिर कोल्ड एंड फ्लू का मेंशन है, थ्रोट इन्फेक्शन का मेंशन है. तो हमें ये ध्यान से याद रखना चाहिए इंशाल्लाह. और कोई भी दुकान पे मिल जाते कलौंजी के सीड्स हुए, आप आमतौर पे किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आप जाएंगे तो यू कैन गेट दैट कलौंजी सीड्स. The German researcher Gessner confirms the benefits of black seed as a diuretic and for increasing production of bile and milk. It may also be used to bring on menstruation in adolescent girls and in cases of heavy periods. It is also prescribed in veterinary medicine and in many stomach remedies. Okay. It is also used to calm down the heart rate, thus calming it down and improving its function. दिल की बीमारियों के लिए, दिल की धड़कन तो तेज होती है, बीमारी होती है, तो उसको कम करने के लिए भी एक कलौंजी का इस्तेमाल होता है. और बहुत सारे इधर ये है, we don't have time to go into all that. एस्थमा के बारे में खास दिया है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के बारे में खास यूज होता है इसका कलौंजी का. फिर it is discussed in detail here, black seed and blood pressure. Okay, the black seed reduces the blood pressure. उसको यूज करने के तरीके हैं. There are ways to use the black seed. It reduces blood pressure. The black seed prevents the growth of germs. Black seed contains a substance that has the effect of warding off germs and preventing their growth. Now, ये important, effect of black seed on immunity. When today doctors are saying, the medical field, the experts in medical field are saying that we can't escape from this virus. हमें कहीं ना कहीं तो लग जाएगा. तो हवा में भी ऐसा बोलते हैं,
मास्क लगा के और हाथ धोने से हम ज़्यादा दिन बच नहीं सकते, तो ये हमको इन्फेक्ट होना ही होना है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाओ, आपका जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ाओ, वो काम आएगा। अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशियस फूड खाओ और एक्सरसाइज करो वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वी आर गोइंग टू सी इफेक्ट ऑफ ब्लैक सीड ऑन इम्यूनिटी। it is a it is well known that the immune system is the main line of defense in the body because it is responsible for fighting germs, viruses, and other disease causing factors. In addition to the role it plays in resisting cancer, it fights germs, viruses. Virus, abhi COVID-19 is a virus, it is not a bacteria, right? It has been stated that many modern diseases such as cancer and AIDS result from the weakness of the immune system and its failure to resist disease. This is mentioned in current medical diagnosis and treatment. Dr. Ahmed Al-Qazi and Osama Khindir of the Akbar Clinic and Research Institute in Springfield, Florida, carried out research on black seed and found that this seed plays an important role in strengthening the immune system in the human body. So it offers protection against germs and other harmful biological factors and even viruses. And कैसे वो fight करता है, it is mentioned in detail here, how it is effective. Not going to that, but Kalonji is very effective in warding off diseases, germs, bacteria, and even viruses. And COVID-19 is a virus. Okay? It is proved beyond any doubt that black seed energizes the immune system in the human body. This is mentioned in an article by Dr. Abdullah Abdul Razak Al Saeed. The title is Istishfa Bil Habbat Al Sauda Majallat Ad Dawa Al Arabi, September 1989. Now, this opens the door to medicinal use of black seed in treating and healing all infectious and viral diseases and strengthening the body's self-defense and helping it to overcome overwhelming disease-causing factors. This also increases the Muslims' trust in prophetic medicine, as it calls us to seek healing by means of this blessed seed and regard it as the healing for all disease. सब में बड़ा सवाब जो है, the greatest thing when we start using the prophetic medicine is that we believe that Allah has sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as his last and final messenger, and he has prescribed these medicines, and that is why we are using these medicines. This is the greatest significance of using these prophetic medicines, and Allah will surely give us barakah in that. We have also seen the benefits of applying black seed oil in treating chronic eczema. We prescribed to patients who were suffering from impotency and especially erectile dysfunction in old age, a cup of milk sweetened with honey, to which half a teaspoon of ground black seed had been added once daily, and the results were excellent. Now, how to use them? A ground rule to use the kalonji seeds. Okay, it should be noted that heating the seeds causes them to lose their essential oil and hence to lose a great deal of their medicinal properties. कुछ लोग क्या करते हैं, उसको भूनते हैं, तो भूनना नहीं चाहिए. तो किताब कहती है कि you should not heat it, otherwise उसका जो medicine properties है वो कम हो जाती है. Eating them in their natural state as it is, without crushing them, may reduce the chance of benefiting from them, because if they are not chewed well and enter the body whole with their outer casing, then they will pass through the digestive system and come out as they went in without any benefit being derived from them. तो कलौंजी को जो है अक्खा खाने से किताब कहती है कि ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो मुंह से हम खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से वो बाहर भी निकल जाती है, लेकिन उसको कुछ इफेक्ट नहीं होता. लेकिन उसको अगर कूट के खाएंगे, पीस के खाएंगे या फिर चबा के खाएंगे तो उसका इफेक्ट
ज्यादा हो। मैं भी जो है कुछ दिनों पहले तक, तकरीबन 2 दिन पहले तक मैं भी ऐसे ही खाता था, अक्खा खाता था, क्योंकि जब चबाते हैं तब वो एक पंजेंट स्मेल आती है, थोड़ा सा एक पंजेंट टेस्ट आता है, थोड़ा तेज तेज पना आता है। तो मैं भी अक्खा ही खाता था, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मैं अभी इसको कूट के या फिर चबा के खाऊंगा इंशाल्लाह। Hence, we think that, doctors are telling that we think that grinding or crushing them and then taking them with food or in milk or with anything that goes with them is the ideal way to benefit from them. और अक्सर जो है लोग हनी के साथ खाते हैं, शहद के साथ खाते हैं। और मेरा तरीका ये था मॉर्निंग पर्सनल यूज के, मैं जो है पिछले तकरीबन 7 या 8 महीनों से सुबह उठने के साथ द फर्स्ट थिंग आई यूज टू हैव कलौंजी विथ हनी, 1 चमचा हनी और 1 चुटकी कलौंजी. The first thing in the morning I had was 1 pinch of kalonji, not at 7 or 8, one good quantity, 1 pinch, and 1 spoon of honey. First thing in the morning, as soon as you get up, brush your teeth and eat that. That was Alhamdulillah my routine. But now I am crushing the seeds and having it with honey in the morning, inshallah. Okay. Now another use is that I want to show is a very, what this is a personal, this is not mentioned in the book. This prescription is not mentioned in the book. This is what I got to know from somewhere. I don't remember, but this is my personal experience. ये कलौंजी को हम क्या करते हैं, एक कॉटन के कपड़े में लपेटते हैं, एक पतले कॉटन के कपड़े में लपेटते हैं ऐसे, और इसको हम रब करते हैं थोड़ी देर तक, और हम लोग देर तक डीप ब्रीथ लेते हैं यहाँ से, और ये भी मुंह में पकड़ के भी हम खींच सकते हैं. ओके, द फर्स्ट, what this is my personal experience. Again, I'm telling, I have benefited a lot from this. You take a soft cotton cloth, put 3 pinches of, or 3-4 pinches of kalonji in it, and then rub it in a hand, and then you take deep breaths, and you can even take, you can even breathe from the mouth with holding this kalonji packet in your mouth. Okay, and you will find that your breathe, you can breathe very easily. The cough comes out, and you can do it any time of the day, but the best is at night time before sleeping. And in the morning you will feel, surely feel that you are finding it easy to breathe. Okay, this is my personal experience. Okay, very good. Inshallah, you can try. It's a herbal thing, no side effects and no nothing. You can do that. So in conclusion, we have that no doubt the Prophet call to treat disease with kalonji is clear and was not given without reason. It is very clear. जनरल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि कलौंजी का नाम से जिक्र है हदीस में. ठीक है, मतलब ब्लैक सीड, हब्बातल बरका, right, or habbatul sauda, whatever they call in Arab region, right? Now, this research should motivate Muslim doctors to research as much as we can in order to find out the medicinal uses of black seed in treating and protecting against diseases, whether that is by grinding the seeds, the oil of the seeds, the essence, or whatever, and to determine the quantity to be used to treat various diseases. That is in accordance with the Prophet's call, which opens the door wide so that we may enter it and find out for all of humanity new drugs which will reduce its pain and treat untreatable diseases. Muslims should realize its importance first. In Europe, it is very common. In European countries, it's very common. They use kalonji as spices, etc. But many Muslims, I think around, according to me, 80% Muslims, they don't know about this prophetic medicine. How sad, right? So, and of course, along with the kalonji, along with the black seed, the first and foremost, we trust Allah. As I said at the beginning of my talk, that the Quran says to Ibrahim alayhi salam, he says that it is, when I'm sick, it is Allah who cures me.
Kalonji does not cure you. So as to say, Allah cures you through Kalonji. Allah has kept blessings in the Kalonji, and He has ordered, He has instructed the Prophet to tell us, the Ummah, about the benefits of Kalonji. So first and foremost, trust Allah subhanahu wa ta'ala that He is the curer, then obey Allah's command, then do the 5 times salah and do the azkar, especially these duas in the pandemic days. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Then we say Bismillahi arqiq min kulli shay'in uzik min sharri kulli nafsin aw in hasib Allahu yashfik Bismillahi arqiq. This is the Jibreel alayhi salam's dua. Then we have Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi barsi, la ilaha illa anta. Then we have so many dua, so many azkar for protection against diseases. Even that we should do. Okay, so trust in Allah, make those azkar and use the black cumin seed, and remember me in your duas, right? Me and my family and my parents who have fasted, right? Remember them in duas, special duas for them. So I end my talk here, and if there are any questions, we can have a short question answer. Yes, if there are any questions, we can discuss some questions. Raise your hand if you have any question. The host will unmute you, inshallah. मेरे को एक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी मुझे ये पूछना था कि तहज्जुद की नमाज और वितर की नमाज दोनों एक जैसी है क्या, या ये पढ़ो या ये पढ़ो, तो दोनों का सवाब अलग है या फिर एक ही है? बहन ने सवाल पूछा है, टॉपिक से हटके है, तो तहज्जुद की नमाज या वितर की नमाज जो है वो एक जैसी है या हटके है? तो क़ियामुल लैल को तहज्जुद कहते हैं। ओके, तहज्जुद कहते हैं, और उसी नमाज को रमज़ान के महीने में हम तरावी कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज हर रात को वो तहज्जुद पढ़ते थे, रसूलों के लिए वो फर्ज थी। ठीक है, और वितर जो है, वितर का हुक्म ऐसे है कि वो आखिर में, मिसाल के तौर पे आपको तहज्जुद नहीं पढ़ना है, आपका तहज्जुद पढ़ने का इरादा नहीं है, क़ियामुल लैल का इरादा नहीं है, या फिर तरावी पढ़ने का इरादा नहीं है, तो आप ईशा के नमाज के बाद ही आप वितर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वितर जो है सुन्नतुल मौक़िदा है, यानी ट्रैवलिंग के दौरान भी अल्लाह के रसूल वितर को नहीं छोड़ते थे ना। आज लास्ट जो 3 रकात या 1 रकात वितर पढ़ते हैं, तो वितर को नहीं छोड़ते। तो बेशक तहज्जुद की नमाज में भी बहुत ज़्यादा सवाब है, और वितर क्योंकि ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उनका तरीका है, सुन्नतुल मौक़िदा है, तो इसका भी सवाब। उम्मीद है कि सवाब के सवाल का जवाब। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ यही नमाज पढ़ते थे, वितर नहीं, ये तराबियां नहीं पढ़ी क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फिर हम लोग कैसे तराबियां पढ़ते हैं मुसलमान? अच्छा, तरावी जो वर्ड है, अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल नहीं किया, सहाबा ने इस्तेमाल नहीं किया। उनके वक्त जो वर्ड था क़ियामुल लैल था, रात की नमाज। ये बाद के लोगों ने उसी नमाज को रमजान के में तरावी यानी रेस्ट करना। ओके, लोग क्या करते थे, 4 रकात पढ़ के जो है रेस्ट करते थे, फिर बाकी के 4 रकात पढ़ते थे, तो उसका नाम तरावी पड़ गया। तो तरावी सेम है, क़ियामुल लैल, तहज्जुद, तरावी इज द सेम। रमजान में हम उसको तरावी के नाम से जानते हैं। तो अगर आप तरावी पढ़ रहे हैं तो आप क़ियामुल लैल पढ़ रहे हैं, आप क़ियामुल लैल पढ़ रहे हैं तो आप तहज्जुद पढ़ रहे हो, सब एक ही है। तो अल्लाह के रसूल ने जो किया, रमजान में जो हम तरावी पढ़ते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने, बेशक अल्लाह के रसूल भी रमजान के महीने में तो तरावी की नमाज पढ़ते थे, लेकिन उनके पास वो क़ियामुल लैल के नाम से जानी जाती। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल तो भैया। और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक कलौंजी जो है हर बीमारी के अलग अलग हिसाब से, तो क्या क्वांटिटी में यूज करना है, वो थोड़ा किसमें देखकर मालूम करना पड़ेगा? हाँ, बहन ने सवाल किया है कि बहुत अच्छा सवाल है कि कलौंजी की इस्तेमाल तो है, कलौंजी हर बीमारी की शिफा है, लेकिन क्या क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है,
और कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि कलौंजी में शिफा है। यानी कलौंजी को अक्खा भी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ कलौंजी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसका ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलौंजी को पानी में घोल के डिजोल्व करके इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर जो है हनी के साथ, शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और विनेगर के साथ इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे तरीके, ये जो तरीके आपको मिलेंगे इब्न क़य्यिम अल जौज़ी किताब अल तिब अन नबवी में, या फिर ये जो मेरे पास जो किताब है इस्लामिक मेडिसिन, ये इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऑथेंटिक वेबसाइट्स भी हैं। इंशाल्लाह मैं वेबसाइट्स को, अपने जो ऑनलाइन ग्रुप है उसमें इंशाल्लाह वेबसाइट्स को भेजूंगा। आप वो वेबसाइट्स को देखिए, रेफर कीजिए, और कलौंजी का इस्तेमाल कीजिए। बेसिक इस्तेमाल जो है, फंडामेंटल, सुबह में उठने के साथ जो है कलौंजी को, एक चुटकी कलौंजी, ऐसे नहीं कि वो 7 दाने गिन रहे हैं, 8 दाने गिन रहे हैं, एक चुटकी, अच्छी एक चुटकी, हाफ अ टी स्पून ऑफ कलौंजी, यू कैन हैव इट विथ हनी, शहद के साथ। मोस्ट कॉमनली ये बेसिक है, तो खाना ही चाहिए। मतलब ये तो इसके बारे में कोई शक नहीं कि शहद के साथ लोग खाते हैं। तो कलौंजी को सुबह सुबह खाना सब में बेहतर है। आप दिन में भी खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह पहली चीज जो हम खाते हैं वो शहद और कलौंजी मिला के खाएंगे, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। और कलौंजी का ऑयल भी, बाजार में कलौंजी का ऑयल भी मिलता है, तो आप अपने जो हकीम, जो ऑथेंटिक हकीम है आपके एरिया में वगैरह, वेबसाइट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे भी आप राय मशवरा कर सकती हैं। और जैसे कि ये एक है इलाज, जैसे मैंने बताया, सॉफ्ट कॉटन के कपड़े में लपेट के उसको रब करके आप, तुमसे ये नाक साफ हो जाती है, सांस लेने में बहुत आसानी हो जाती है, कफ पूरा दूर हो जाता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये किसी बुक में नहीं है, ये लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, तो इसके लिए आप वेबसाइट रेफर कर सकती हैं, किताबें पढ़ सकती हैं, और बेसिक जो है, सुबह उठने के साथ कलौंजी और शहद अगर खाएंगे तो ये बहुत ज्यादा बेहतर। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। और कोई सवाल है अगर तो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। या, बहुत अच्छा था दर्स, और कलौंजी के बहुत सारे फवाइद। ब्रदर हमें ये जानना था कि अल्हम्दुलिल्लाह। कलौंजी का ऑयल अगर किसी के सर में भी कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ यूज कर सकते हैं, बाल में, जैसे बाल में कहीं भी होता है कि कुछ बाल ज्यादा निकलते हैं तो बाल में भी लगा सकते हैं, या ऐसे ही मतलब कोई स्किन का प्रॉब्लम है? बहन ने सवाल किया है, आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, लेकिन जब तक मैंने अंडरस्टैंड किया हूँ, सर को लगा सकते हैं बालों के लिए। तो खास जिक्र है कि कलौंजी से बाल जो है, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर रीग्रोथ ऑफ हेयर। यानी ग्रोथ ऑफ हेयर के लिए तो है ही, लेकिन जिसके बाल झड़ना शुरू होते हैं उसके रीग्रोथ के लिए भी बहुत बेहतरीन कलौंजी जो है, बहुत अच्छी चीज है। और जो है उसको कैसे लगाना है, उसको ऑयल लगाना, ये तो आप जो है, तो आपको वेबसाइट पे देखना पड़ेगा, या फिर एक ऑथेंटिक किताब पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपके कोई हकीम है जो आप जानते हैं, ऑथेंटिक कोई हकीम है, उससे राय करना पड़ेगा कि कलौंजी खाने से बाल ठीक होते हैं, या उसका तेल भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, स्किन डिजीज के लिए स्पेशल मेंशन है कि कलौंजी का जो ऑयल है वो स्किन डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, एक्जेमा वगैरह के लिए, स्किन डिजीज के लिए बहुत 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 अच्छा है। ठीक है, तो स्किन डिजीज के लिए भी हो गया, और बालों की ग्रोथ के लिए भी, तो आप अगर कलौंजी रोज खाएंगे तो बालों के लिए बहुत अच्छा है, बाल बहुत अच्छे उगते हैं। और जो है, जिनके बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं उसके लिए, रीग्रोथ ऑफ हेयर के लिए भी वो फायदेमंद। तो बाकी के जो डिटेल्स हैं, बाल को, सर को कैसे लगाना, सिर्फ खाना जरूरी है या खाने के साथ आप बाल को ऑयल लगा सकते हैं या नहीं, ये तो आप जो है किसी हकीम या ऑथेंटिक वेबसाइट से इंशाल्लाह जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भी आपको इंशाल्लाह अपने दर्स ऑनलाइन ग्रुप में इंशाल्लाह कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट भेजूंगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि सवाल का जवाब जज़ाकल्लाहु वही जा खैर। सलाम। वही जा। और कोई सवाल है? What is the best way to take कलौंजी for shifa on the daily basis according to Sunnah? हम जो कलौंजी लेते हैं, okay. According to Sunnah, as I told, the Prophet used to have कलौंजी with honey, okay, and he used to take कलौंजी from, with
many many ways, and many people he guided many people about how to take. And his bondswoman Ayman was his nurse, and she used to take the information from the prophet and tell the people कि कलौंजी को ऐसे इस्तेमाल करो, आप ऐसे इस्तेमाल करो, राइट? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. बेसिक जो है the sunnah way, as far as I know, is the best is in the morning take kalonji with honey, right? So inshallah, even honey is mentioned in the Quran. Allah says about honey that in honey is a healing for mankind. So honey and kalonji both, inshallah, we can benefit a lot. And for specific diseases, कुछ खास बीमारियां हैं, कुछ खास तकलीफ है, तो आप बिल्कुल कलौंजी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा ये हर बीमारी का इलाज, राइट? तो इंशाल्लाह you can do that. I hope that answers the question. Another question, if there is another question, you can just, yes. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी मेरा टॉपिक से हट के सवाल है, पूछूं? हाँ जी जी पूछिए. जी तरावीह में जैसे इशा की नमाज पढ़ते हैं तो 3 वित्र पढ़ते हैं, 2 निफल पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आखिरी नमाज हमारी वित्र होना चाहिए. तो आखिरी नमाज वित्र होना चाहिए, तो फिर हम निफल पढ़े या नहीं, चाहे वो इशा में, तरावीह के बाद या फिर तहज्जुद में, वित्र के बाद निफल पढ़े या नहीं. और एक सवाल ये भी था कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं हम, या फिर हम पर अल्लाह का कर्ज है, हम अल्लाह का कर्ज चुका रहे हैं, ये पूछना था मुझे. इंशाल्लाह. अच्छा जी, इंशाल्लाह. बहन ने सवाल किया है. पहला सवाल ये था कि जो है वित्र के बाद जो 2 रकात नफिल पढ़ते हैं तो किस तरीके से है. वित्र तो आखिरी नमाज है, तो अल्लाह के रसूल जो है 8 रकात तहज्जुद 2-2 करके 8 रकात तहज्जुद या क़ियामुल लैल या तरावी जो भी आप कहें वो पढ़ते थे, और आखिर में 3 रकात, 1 रकात या 1 रकात वगैरह वित्र पढ़ते थे. और वित्र जो है आखिरी नमाज है. वित्र के बाद कोई नफिल नमाज नहीं है. मिसाल के तौर पे अगर आप 8 रकात तरावी पढ़ लिए, अगर आपको और नफिल पढ़ना है, आप 10 रकात पढ़िए, आप 12 रकात पढ़िए, आप 12 रकात पढ़ के 8 रकात तरावी पढ़ के सो रहे, रात में नींद खुल रही है आपकी, फिर से और 4 रकात पढ़ लिए, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब आखिरी जो पढ़ेंगे, आखिरी नमाज जो पढ़ेंगे वो वित्र होनी चाहिए. और कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपने रात में, मिसाल के तौर पे आपको डर है कि नींद नहीं खुलेगी, और जो है आपने वित्र पढ़ ली, इशा के बाद आपने थक गए, वित्र पढ़ ली कि पता नहीं उठ पाएंगे या नहीं, लेकिन आप उठ गए, आपको अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, तो आप वित्र पढ़ने के बावजूद भी आप जो है क़ियामुल लैल पढ़ सकते हैं, तहज्जुद पढ़ सकते हैं. लेकिन अगर आपका इंटेंशन है कि नहीं पढ़ना है, एंड करना है, मुझे क़ियामुल लैल अभी हो गई है, तो आप आखिरी नमाज वित्र है, और वित्र के बाद कोई भी नमाज नहीं है. वित्र के बाद कोई नफिल नमाज साबित नहीं. उम्मीद है कि सवाल का जवाब है. और जो दूसरा सवाल था वो है कि हम जो इबादत कर रहे हैं अल्लाह की, वो अल्लाह का कर्ज है या अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं. ओके, तो इबादत, अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया सिर्फ मेरी इबादत के लिए. तो हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी जो ड्यूटी है वो अल्लाह की इबादत है. इबादत यानी सिर्फ नमाज ही नहीं, जब हम सच बोल रहे हैं वो भी इबादत है, जब हम माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं वो भी इबादत है, जो हम लोगों के काम कर रहे हैं, कुछ मदद कर रहे हैं वो भी इबादत है, हम ये जो ऐसे इस्लामिक टॉक्स अरेंज कर रहे हैं ये भी इबादत है. यानी जो भी तरीके से हम उम्मत का फ़ायदा कर रहे हैं, मुसलमानों का फ़ायदा कर रहे हैं, इंसानियत का फ़ायदा कर रहे हैं, या फिर अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा, ये सारी चीज़ें इबादत में आती हैं. अल्लाह कहते हैं कि हमने इंसानों और जिन को पैदा किया सिर्फ हमारी इबादत के लिए, यानी अल्लाह की इबादत के लिए. और ये अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह का हक इंसान पे यह है कि इंसान अल्लाह की इबादत करे और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करे. और इंसान का हक अल्लाह पे यह है कि अल्लाह उसको बेवजह अजाब नहीं देगा, बेवजह सज़ा नहीं देगा. अगर उसने कोई मतलब बेवजह सज़ा नहीं देगा और उसे बेवजह जहन्नम में नहीं डालेगा. तो ये अल्लाह का हक है इबादत बेशक,
लेकिन हमको ऐसा कर्ज है वगैरह ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बस हक है, अल्लाह का हक है। अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया, हमारी जिंदगी अल्लाह ने दी, हमको खाना पीने के लिए अल्लाह दे रहा है, हमको ये हवा अल्लाह ने दे रहा है, एवरीथिंग इज गिवन बाय अल्लाह। तो ये अल्लाह का हक है कि हम अल्लाह की इबादत करें, और अल्लाह का ये एहसान है, अल्लाह की ये गफ्फारियत है, अल्लाह की ये अल्लाह रहमान है और रहीम है कि उस हक को जब हम अदा करते हैं अल्लाह ने, तो उसके लिए भी अल्लाह हमको सवाब देता है, उसके लिए भी अल्लाह हमको नवाजता है। नमाज पढ़ रहे और का हक अदा, मिसाल के तौर पे हम लोग जो है किसी के पास काम कर रहे, तो वो जो ओनर है वो हमको सैलरी देता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नमाज पढ़े, इबादत करें, किसी तरीके से भी जो भी इबादत कर सकते हैं, जो भी अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो जो सवाब जो अल्लाह देता है वो कई गुना ज्यादा सवाब देता है। अल्लाह का हक है जरूर इबादत करना, अल्लाह का हक है, हम करते हैं, लेकिन यही हक अदा करने के लिए हमको अल्लाह सुब्हान व तआला हमको बेमिसाल तौर पे हमको जो है सवाब देता है। तो दोनों जगह से हम फायदे में, हम हक, अल्लाह का हक भी अदा कर रहे हैं और हमको ज्यादा से ज्यादा सवाब भी मिल रहा है, और इंशाल्लाह हमको जन्नत भी मिलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि जन्नत में पहला सवाल पूछा जाएगा कि जो जहन्नमी हो गए, जन्नत वाले पूछेंगे जहन्नम में से, तो आप कैसे यहाँ पे आग में, तो वो कहते होंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। ठीक है, तो नमाज पढ़ना, अल्लाह की बात करना अल्लाह का हक है, शिर्क नहीं करना, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना, ये अल्लाह का हक है। और ये हक को जब हम पूरा करते हैं तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें बहुत नवाजता है। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। और कोई सवाल है तो कर सकते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आपने कहा है कि कलौंजी के साथ अगर शहद में मिला के खाएं तो उसमें बहुत शिफा है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आजकल तो शहद तो पता है कि ओरिजिनल यानी असली तो मिलता नहीं है, तो अभी ये जो बाजार में जो मिलता है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? तो भाई ने सवाल किया कि शहद जो है अपने असली शहद बहुत कम मिलता है। हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सही है कि शहद असली हालत असली शहद नहीं मिलता है। और एक 2 महीने 3 महीने पहले एक रिसर्च आई थी, ये तकरीबन शायद 6 महीने पहले, कि शहद कैसे, डाबर का शहद कैसे उसमें मिक्स करते हैं, या फिर बड़े बड़े कंपनीज के शहद के बारे में एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी, जिसके बहुत न्यूज़ में भी कहा गया कि कैसे मिक्सअप करते, कैसे मिक्स करते हैं। तो असली शहद के मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, मैं जो है वो है भारत हनी। भारत हनी मैं पिछले 4 सालों से इस्तेमाल करता, तकरीबन 4 सालों से इस्तेमाल करता हूँ। और ये जो भारत हनी है ये अमेजोन पे भी मिलता है और दुकानों में बहुत शायद कम मिलता है, बाकी डाबर वगैरह बहुत इजीली मिल जाते हैं, लेकिन भारत हनी जो है, जहाँ तक मेरी राय है, वो दूसरों से बेहतर है। अब 100% प्योर है या नहीं पता नहीं, लेकिन दूसरों से बहुत बेहतर है भारत। ठीक है। और अभी एक ये आ रहा है, एक टॉक आ रही है जैद पटेल साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, उनके तरफ से शेख सनाउल्लाह मदनी का एक प्रोग्राम आ रहा है, और उसके प्रोग्राम में एडवर्टाइज में मैंने देखा कि उस बयान के बाद शेख सनाउल्लाह मदनी लोगों से सवाल पूछेंगे, और वो सवाल का सही जवाब मिलने पर वो उसको एक भारत हनी गिफ्ट दिया जाएगा। भारत हनी तो जहाँ तक मेरा है बहुत अच्छा है, लेकिन सब में और अच्छा है कि कोई उमरा जाता है, कोई हज जाता है, वहां से अगर आप शहद अगर ला सकते हैं, मंगवा सकते हैं, या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं, तो सब में, क्योंकि असली शहद रहेगा तो ही हमें हीलिंग होगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है तो हम जो है अल्लाह पे भरोसा करें कि जो भी अवेलेबल है, जो भी बेहतर से बेहतर हनी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है या मैंने गलत है पता नहीं, लेकिन मैं अल्लाह तेरे पे भरोसा करके, मैं तूने कहा है मैं खा रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। कोई सवाल है तो कर ले सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम लोग सेशन एंड कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा वालेकुम एक और अस्सलाम। सवाल था कि फिर हम तरावी भी पढ़ते हैं और 20 रकात पढ़ते हैं, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। और फिर तहज्जुद की नमाज़ अलग से पढ़ते हैं, उसमें बताया कि कम से कम 8 रकात तो पढ़ना ही चाहिए, तो फिर क्या करें हम? क्या पढ़ें, बहन कब ने पढ़ें, किस तरह पढ़ें? जैसे आप बहन बोल रहे हो कि वही तहज्जुद है, वही क़यामुल लैल है, वही तरावी है, तो हम क्या करें? बहन ने सवाल किया है कि ये 20 रकात भी पढ़ती हैं, फिर अलग से तहज्जुद भी पढ़ती हैं, तो उसके बारे में उनको ज़रा कंफ्यूजन है। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने अपने ज़िंदगी में कभी भी यानी तहज्जुद यानी 8 रकात तहज्जुद और 3 या 1 रकात वितर से ज़्यादा कोई नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरी ज़िंदगी में क़ियामुल लैल, चाहे वो गैर रमज़ान हो चाहे वो रमज़ान हो, 8 रकात और 3 रकात या 1 रकात जो भी वितर है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई नमाज नहीं पढ़ी। और जो है जैसे कि मैंने कहा कि तरावी, क़ियामुल लैल और तहज्जुद सब एक ही हैं, बिल्कुल एक हैं। और जो है मिसाल के तौर पे तहज्जुद को 8 मिसाल के तौर पे मैंने तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट किया। अब ये नहीं कि मैं 8 रकात ही पढ़ूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं 2 रकात पढ़ के भी बस कर सकता हूँ। 8 रकात पढ़ना सब में बेहतर है, सब में अच्छी बात है। 8 रकात पढ़ने के बाद भी मुझे लग रहा है कि और 2 रकात नफिल पढ़ सकता हूँ मैं, तो पढ़ लूँ, तो उसमें कोई रोक। लेकिन अल्लाह के रसूल से साबित 8 है, बेस्ट इज 8 रकात, सब में बेस्ट। लेकिन अगर आप 2 रकात भी पढ़ रहे हैं तहज्जुद, मिसाल के तौर पे ईशा की नमाज पढ़ लिए, 2 रकात सुन्नत पढ़ लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि नींद आ जा रही है, थकावट हो रही है, 2 रकात तरावी 2 रकात पढ़ के भी एंड कर सकते हैं, 4 रकात पढ़ के एंड कर सकते हैं, 6 रकात पढ़ के एंड कर सकते हैं, 8 रकात भी पढ़ सकते हैं, सब में बेस्ट। लेकिन सब में जो अच्छा 8 रकात अल्लाह के रसूल साबित है। और अगर आपकी फिर से नींद खुलती है, फिर आप पढ़ना चाहते हैं नफिल, आप और भी पढ़ सकते हैं। इसका तफसीली जो जवाब है वो इंशाल्लाह कल शेख अब्दुल बासित मदनी से आप इंशाल्लाह इसका जवाब तफसीली तौर पे इंशाल्लाह हासिल करें। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। जी, एक सवाल आया शायद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी हमने सुने हैं कि दुआओं से तकदीर बदलती है, तो ये सच बात है या जो हमारे तकदीर में है वही हमारे साथ होगा, चाहे हम कितनी भी दुआएं मांगे या कितनी भी कोशिश कर लिए? बहन ने सवाल किया है कि एक हदीस में आता है, अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तकदीर को बदलने वाली सिर्फ एक चीज़ है और वो है दुआ। तो बहन का सवाल था कि ये दुआ से तकदीर बदलती है या फिर हमारे तकदीर में जो था वही होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साफ अल्फाज हैं कि दुआ जो है तकदीर को बदलती है। यानी हमारे तकदीर में अगर कुछ बुरा होगा, कुछ हादसा होगा, कुछ एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा, तो अगर हम दुआ करते रहे तो हमको वो इंशाल्लाह हमारे तकदीर से, हमारे जो नसीब में जो लिखा है वो टल जाएगा, दूसरा कुछ अच्छी चीज़ आ जाएगी। लेकिन ये भी जो है ये अल्लाह के इल्म में है कि आप दुआ करने वाले हो और आपकी जो ओरिजिनल तकदीर थी उसको वो चेंज करके कुछ हादसा है आपके तकदीर में, तो वो चेंज करके कुछ अच्छी चीज़ आने वाली है। तो ये भी इल्म अल्लाह, है ना, ये भी इल्म अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह जानता है कि आप दुआ करने वाले हो और आपकी तकदीर जो है चेंज होने वाली है। ठीक है। तो ये ऐसी बात है। तो हमारा काम है कि हम दुआ करते रहें। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि तकदीर बदलती है दुआ, तो हमारा काम है कि हम दुआ करते रहें। और जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने जैसे कहा कि अगर कुछ बुरा है, अगर कुछ हादसा है, अगर कुछ परेशानी है, तो ज़रूर हमारी दुआ जो है हमारे तकदीर को, हमारे तकदीर में जो बुराई है वो टाल देगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह सुब्हान व तआला को नऊज़ बिल्लाह मजबूरन ये करना पड़ा या क्या, या फिर अल्लाह के इल्म में नहीं। अल्लाह के इल्म में तभी था कि आप दुआ करने वाले हो और ये ऐसा होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो हमारा काम है बस दुआ करते रहें और जो है इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला हमें जो है एक अच्छी लाइफ देगा। और जो अगर कुछ बुरा हादसा अगर कुछ है हमारे हमारे तकदीर में, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर चेंज करे। उम्मीद है कि सवाल का तो कोई सवाल है?
कोई सवाल है तो ले सकते हैं। शायद एक मैसेज, अच्छा, हाउ टू यूज कलौंजी फॉर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो ये किताब में इस्लामिक मेडिसिन द की टू अ बेटर लाइफ पब्लिश बाय दारुस्सलाम, ये किताब में इसका खास जिक्र आया है। मेंस्ट्रुएशन में जो प्रॉब्लम्स होती है औरतों को, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। द जर्मन रिसर्चर गेस्टनर कंफर्म्स द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक सीड एज अ डायूरेटिक एंड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ बाइल एंड मिल्क। यानी जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, जो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके अंदर दूध ज्यादा करने के लिए भी कलौंजी का इस्तेमाल होता है। फिर वो रिसर्चर कहता है कि इट में ऑल्सो बी यूज टू ब्रिंग ऑन मेंस्ट्रुएशन इन एडोलेसेंट गर्ल्स, जिनको मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है तो ये कलौंजी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस तरीके से करना है ये एक अलग चीज़ है, एक अलग बहुत सारी किताबें हैं वेबसाइट पे, इंशाल्लाह वो देखेंगे। लेकिन कलौंजी का इस्तेमाल इस चीज़ में भी होता है कि जो गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है उसको स्टार्ट करने के लिए, या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है उसको ठीक करने के लिए भी कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर एंड इन केसेस ऑफ हैवी पीरियड, तो हैवी पीरियड्स भी हैं, हैवी पीरियड्स की जो तकलीफ है तो उसके अंदर भी कलौंजी जो है ये फायदेमंद है। अब वो कैसे इस्तेमाल करें ये एक अलग एक टॉपिक है, तो मैं इंशाल्लाह देखूंगा कोई ऑथेंटिक वेबसाइट जहाँ पे हर बीमारी का, स्पेसिफिक बीमारी का कैसे कलौंजी को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर वो वेबसाइट अगर मिलती है तो हमारे ऑनलाइन 10 ग्रुप में इंशाल्लाह भेज दूंगा। तब तक जो है आप इब्न अल कय्यम अल जौज़ी, मैंने डाउनलोड किया, अभी जस्ट डाउनलोड की है, इब्न अल कय्यम जौज़ी की आइकॉनिक किताब, बेस्ट किताब, अल तिब अन नबवी, द प्रोफेटिक मेडिसिन बाय शेख इब्न अल जौज़ी रहमुल्लाह। उनकी किताब जो है ये ऑनलाइन फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में, फ्री में। तो आप, मैंने अभी जस्ट प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले मैंने की डाउनलोड, तो ये उसमें भी आप ढूंढ सकती हैं, ये जो सवाल के जवाब है आपके बाल के बारे में है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, जो भी आप ढूंढ सकती हैं, शायद इसमें मिल जाए। और नहीं है तो फिर वेबसाइट में भी सर्च कर सकती हैं, या फिर कोई हमारे जो हकीम वगैरह है तो इंशाल्लाह उससे भी आप रब्ता कायम। उम्मीद है कि सवाल का जवाब भैया। सवाल है और एक सवाल ब्रदर, आपने जो अभी नाम बताया वो फिर से दोहराइए प्लीज। बुक का है ना? नहीं, है इब्न अल कय्यूम का जौजी कौन सा नाम? शेख इब्न अल कय्यूम अल जौज़ी, बताता हूँ, अल तिब अन नबवी। पार्डन? अच्छा, जो आपको डाउनलोड करनी है देखो उसका इंग्लिश में नाम है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है किताब का, हीलिंग विद द मेडिसिन ऑफ द प्रोफेट, हीलिंग विद द मेडिसिन ऑफ द प्रोफेट बाय इमाम इब्न अल कय्यम अल जौजिया। जो ओरिजिनल जो किताब है उसका नाम है, मतलब ये इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम है, द प्रोफेटिक मेडिसिन अल तिब अन नबवी। ठीक है, अल तिब अन नबवी ये ओरिजिनल किताब का नाम है, और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम है वो है मेडिसिन ऑफ द प्रोफेट। ये अभी अभी मैंने डाउनलोड की पूरी किताब, ये 653 पेजेस की किताब है, 653। तो इंशाल्लाह अपने ऑनलाइन दर्स ग्रुप में भी इंशाल्लाह भेज दूंगा ये मैं, तो इंशाल्लाह आप यहाँ से भी आप ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह। भैया जज़ाकल्लाह खैर। भैया और कोई सवाल है तो ले सकते हैं। कोई सवाल नहीं। ठीक है, तो अगर कोई सवाल नहीं तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।